हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल समझो केमिस्ट्री डिटेल में. सो आई वाज डिस्कसिंग विथ यू स्टीरियोआइसोमरिज्म. स्टीरियोआइसोमरिज्म में आई हैव डिस्कस्ड विथ यू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म with both square planar complexes and the octahedral complexes, and then I started optical isomerism, and optical isomerism में I have finished discussion with tetrahedral complexes and I started discussion with the octahedral complexes. Some examples I have already discussed with you, and the trick to find the number of geometrical isomers and the optical isomers I have already told you. So today again in this video I will be discussing some more complexes, and they are the octahedral complexes, and we will see how many GIs are possible, मतलब geometrical isomers कितने हो सकते हैं, and हर एक GI को हम चेक करेंगे whether they are optically active or not, and how many optical isomers are possible, how many stereoisomers are possible, we will count and we will discuss. So let's start today's video. So first compound I have already written in the board. It is the complex which is having the formula Ma3BCD. Here all the ligands are monodentate, you can see. Ligands are monodentate, and in case of monodentate ligands, I told you the trick that if one pair is having same ligand like AA or BB, then it will be optically inactive. And if two pairs are same, say AB or AC, this way if it is found, then that geometrical isomer also will be optically inactive. So let's first write down the possible arrangements, that permutation and combination technique, and how many possible arrangements of the ligands are possible, that we will write first, and from that we will come to know the number of geometrical isomers, and each geometrical isomer further we will check whether they are optically active or not by using that trick, because till now we are discussing with the monodentate ligands. So monodentate ligands के लिए जो ट्रिक हमने बताया था आपको, एक बार और हम लिख देते हैं उसको बोर्ड में ताकि आप याद कर सको. मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए द ट्रिक इज very important trick. If one pair is same like AA or BB, or any two ligands are same, then the complex will be optically inactive. So this trick we are to apply when the ligands are monodentate ligands and there is no didentate ligand, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल. डाइडेंटेड लिगैंड के केस में हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इट इज ओनली फॉर द मोनोडेंटेड लिगैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिगैंड्स को अरेंज करेंगे और डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स को हम देखेंगे कितना डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. सो A3BCD. सो पॉसिबल अरेंजमेंट्स, नंबर 1 AA, AB, CD. Three pairs we will be making by taking two ligands, and they are to be considered opposite to one another. आमने सामने होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट में होगा, एक साइड में नहीं होगा. So as there are 3A, 1B, 1C and 1D, so we can have first arrangement of the ligands, this one. Second arrangement AA, let us keep it same. इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं ACBD. एक और अरेंजमेंट इन दोनों से पॉसिबल है, दैट विल बी AA, AD, BC, and one more arrangement can be done, that will be AB, AC, AD. See, 3A, 1B, 1C, 1D. So
These many arrangements of the ligands are possible by permutation combination technique. So how many geometrical isomers can be there? Geometrical isomers will be 4. So जितना different arrangement of the ligands by the process of permutation combination आप बना सकते हो, उतना ही नंबर में geometrical isomers होंगे. So geometrical isomers के नंबर 4 है. Now let us check how many of them, ये जो 4 geometrical isomers है, इनमें से कितने optically active है और कितने inactive है. So using this trick you can see this one, एक पेयर ऐसा है जिसमें सेम लिगेंड है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है. So ये तीनों तो क्या होगा, ये these all 3 will be optically inactive. These all 3 will be optically inactive. But what about this one? This one is not having as such any ऐसा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें सेम लिगेंड है, या तो कोई भी 2 पेयर सेम नहीं है. So this one will be optically active. So if this one is optically active, then we know optically active one exists in 2 forms. One is the D form, another is the L form. That means one rotates the plane polarized light in the right hand side, जिसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, और दूसरा जो है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में घुमाएगा और उसको हम कहेंगे लेवोरोटेटरी, और उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस वन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. एंड ऑप्टिकली एक्टिव, इफ इट इज optically active, then it will exist in 2 isomeric forms. One will be D, another will be L. So बाकी जो 3 हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ, मैंने पहले भी बोला था ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ अब स्टीरियो आइसोमर को नहीं मिलाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको अलग से बता देना है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने अलग से बता दिया 4. अब इनमें से आपने चेक किया दिस वन हैज बीन फाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. सो इससे 2 आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे जिनको हम एनांशियोमर्स कहेंगे. ये जो D और L, इनको एनांशियोमर्स कहा जाता है. तो ये तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, और इन तीनों को जो है आपको एज ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर काउंट करना है. सो व्हेन यू विल से अबाउट द ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर्स के नंबर जब आपको बोलना है, तो आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव सबका नंबर आपको काउंट करके बताना है. सो वी राइट हियर स्टीरियो आइसोमर्स. हाउ मेनी विल बी? The stereoisomers number 3 are optically inactive, and 1 is optically active, लेकिन वो 1 नहीं गिना जाएगा, it will be counted as 2 because this one which is optically active that will exist in D form and L form. So उसके लिए हम 2 काउंट करेंगे. So total number of stereoisomers हो जाएंगे 5. सो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स के नंबर हमने इस कंपाउंड में बना दिया. अगर आप स्ट्रक्चर वाइज चेक करना चाहते हो, जैसे हमने ट्रिक से बता दिया आपको कि दिस 3 विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ये जो ट्रिक के हिसाब से ये तीनों में सेम लिगेंड का एक पेयर है, तो इसीलिए हमने बता दिया बिना स्ट्रक्चर चेक किए कि दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. आप अगर किसी एक का स्ट्रक्चर भी चेक करना चाहते हो, यू विल सी दैट वन विल हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होगा देन इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये आपको पहले भी हमने बताया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए कंपाउंड को अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है, और यह तो मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज दे शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल टू वन अनदर. यही 2 कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की. तो ये 2 कंडीशन हम चेक कर सकते हैं. अगर हमने देखा कि स्ट्रक्चर में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. तो लेट अस टेक एनी वन ऑफ देम. सपोज हम अगर नंबर 1 को लेकर के स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं. ये आपका M हो गया सेंट्रल मेटल एटम और आयन. सो ABCD, ये आपने अगर ABCD और ये AA आपने इस तरह से लिगेंड्स को लगा दिया, तो आप देखो अगर आप ये वाला प्लेन जो है, ये जो बेस है, ये वाला प्लेन से अगर इसको स्लाइस कर दो,
ये वाला प्लेन से अगर आप स्लाइस कर दो तो ये चारों निकल जाएंगे। कौन कौन पड़ा रहेगा? मॉलिक्यूल विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। वन पार्ट विल बी दैट अबव द प्लेन वाला जो लिगेंड है वो रह जाएगा और नीचे भी वही सेम ए लिगेंड रह जाएगा। तो इस तरह से द मॉलिक्यूल विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल टू हाफ्स एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इस तरह से हम बाकी को भी चेक कर सकते हैं जो 3 और हमने लिखा है। सो दिस इज हाउ दिस वन इज डन। सो यू विल टेक द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। The next complex is this one. Number 2 में है, we are starting with didentate ligands. Now didentate ligands दो टाइप का हो सकते हैं, एक तो सिमेट्रिकल, एक है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का एग्जांपल आपको पता है इथिलीन डायमीन, जिसको हम EN से लिखते हैं। फॉर्मूला ये है NH2 CH2 CH2 NH2। दो N एटम यहाँ पे डोनर एटम है, इसको शॉर्टली EN से रिप्रेजेंट किया जाता है। IUPAC में नाम बोलो तो इथेन 1,2 डायमीन है और EN है। या तो आप ऑक्सालेट आयन को ले लो C2O4 -2 आयन। स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है COO -COO-। दिस इज ऑल्सो ए सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगैंड जहां पे दो ऑक्सीजन एटम दे आर एक्टिंग एज द डोनर एटम। सो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगैंड का दो एग्जांपल हमने दे दिया। अनसिमेट्रिकल लिगैंड में एक तो है ग्लाइसिनेटो आयन, ग्लाइसिनेट आयन, मतलब ग्लाइसिनेट आयन को GLY से रिप्रेजेंट किया जाता है। GLY फॉर्मूला इसका ये है this one. So nitrogen atom and this oxygen atom, they act as the donor. So this is the ligand which is a unsymmetrical didentate ligand, and you can see the two donor atoms are not same, and one atom is the donor atom is the nitrogen atom, another is the oxygen atom. So it can make simultaneously two coordinate covalent bonds with the central metal atom or ion through nitrogen atom and oxygen atom. So as it is not having a plane of symmetry, so it is a unsymmetrical didentate ligand. But this one जैसे कि इथिलीन डायमीन है, अगर आप इसको इस तरह से आप कट कर दो, then it will be divided into two equal halves. That's why it is a symmetrical didentate ligand. So we are starting with this. So first example I am taking MAA whole 3. MAA whole 3. This is the complex. इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। CO EN whole 3. CO EN whole 3 अगर है तो EN तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इट विल बी +3 आयन, और CrOX whole 3 and the charge will be -3 because chromium is in +3 oxidation state here and oxalate ion is having a charge of -2. So 3 oxalate ion means what is the net negative charge? -6. So chromium is in +3 oxidation state, so net charge is -3, and in this case En is a neutral ligand, does not have any charge, so cobalt is in +3 oxidation state. So इस तरह से हमने लिखा। So चाहे कुछ भी हो, आइसोमर्स के स्ट्रक्चर में ये चार्ज कोई मैटर नहीं करता, वो चार्ज तो आपने जब फॉर्मूला वगैरह लिखना है तब आपको चार्ज को ध्यान देना है। सो लेट्स टेक MAA whole 3 टाइप। इसमें देखो MAA whole 3 टाइप में अगर हम लिगेंड्स के अरेंजमेंट को देखें
देन एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, AA, AA and AA. So only one arrangement is possible. That's why it does not have any geometrical isomer. So we say no GI. Geometrical isomer are not there. But then is it optically active or inactive? उसके लिए let's make the structure. तो कंपाउंड ले लेते हैं हम, सपोज CO ले लेते हैं, तो 3 EN है। EN को अगर इस तरह से आप, इसका 2 एंड क्या है EN का, N और N, NH2 CH2 CH2 NH2। सो 2 एंड जो है इसका N है। सो अब हम NN करके अगर हम इसको लिख दिया, या तो शॉर्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, EN करके भी लिख सकते हो, EN करके लिख दो, EN लिख दिया। इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो अगर आप सोचते हो कि इसको जो है हम इक्वल टू हाफ में स्लाइस कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो 3 डाइडेंटेड लिगेंड है सिमेट्रिकल, दे आर इन 3 प्लेन्स। ये जो है अगर ये जो है ये वाला प्लेन में है तो एक है आपका, ये सपोज कि आपका बेस है, ये बेस के ऊपर एक आपका इस तरह से है और नीचे से भी एक है। तो अगर आपका एक लिगेंड ऐसे है इन द प्लेन है, सपोज ये वाला प्लेन में है, तो एक जो है ये जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है इसके साथ जो है ऐसे प्रेजेंट है, और दूसरा जो है आपका जो नीचे है इसका, ये नीचे से इस तरह से जो है वो लगे हुए हैं इस कॉर्नर के साथ। तो दैट इज वाई अगर आप इसको स्लाइस कर दो तो 2 इक्वल हिस्सा में ये कभी भी नहीं काट सकते। तो दैट इज वाई इट इज नॉट हैविंग एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इसका मिरर इमेज भी बना के देख सकते हो। मिरर इमेज विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। हमने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का 2 ही कंडीशन बताया था, एक तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप इसका मिरर इमेज बना के देखो। अब मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करने का कोशिश करो, अगर सुपर इम्पोज हो गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है और इसीलिए सुपर इम्पोजेबल हो गया। लेकिन अगर सुपर इम्पोजेबल नहीं हुआ दैट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट देयर। सो इसका मिरर इमेज अगर आपने बना दिया तो ये बनेगा मिरर इमेज इसका। ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा। सो देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखने का कोशिश करो, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। सो आपका जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है दे विल बी 2। अगर इसको आप D मानते हो तो दिस विल बी द L फॉर्म। सो दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 isomeric form, one is dextrorotatory, another is levorotatory. So we say that GI is not there, but then optical isomers, they are 2. That means stereoisomer 2 है। Next we are taking the third compound. Now as we have started, the complex is having didentate ligands, so this trick is not applicable here now. This trick was applicable for the monodentate ligands. So one more trick I will tell you for the didentate ligands, और उसके लिए हम आगे वाला कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं। MAA whole 3 we have done. Next is MAA whole 2 B2, दिस कॉम्प्लेक्स। इसका भी एक एग्जांपल सपोज हमने ले लिया CO Cl2 En whole 2 plus iron, because cobalt is in +3 oxidation state,
2 क्लोरीन मतलब -2, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड, सो -2 + 3 नेट चार्ज विल बी +1, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का ये जो टाइप है वो इस टाइप है। तो इसका जो है पहले हम देख लेते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द लिगेंड्स क्या है। Number 1 is AA, AA, BB। देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अगर सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड आपका एक है, ओनली वन इज देयर, देन आप जो है उसको एक पेयर नहीं बना सकते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेथड में, बिकॉज एक सिंगल पेयर में ए और ए सेम साइड में होगा, दे विल नॉट बी ऑपोजिट टू वन अनदर। बट इफ देयर आर टू सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स, तो आप क्या कर सकते हो, उनको पेयर मेथड से ले सकते हो। अरेंजमेंट में आप लिगेंड्स के अरेंजमेंट उनको उस तरह से ले सकते, जैसे कि यहाँ पे 2 AA हैं, तो हमने लिगेंड्स के अरेंजमेंट किस तरह से बनाया, AA एंड BB, बिकॉज ए के ऑपोजिट अभी ए हो सकता है, बिकॉज देयर आर 2 AA, बट देन इफ देयर इज ओनली वन सिंगल AA, देन यू कैन नॉट टेक इट एज ए पेयर इन द लिगेंड्स अरेंजमेंट। लिगेंड्स अरेंजमेंट उस तरह से नहीं, ए के साथ कोई और लिगेंड को आपको लेना है जो कि उसके ऑपोजिट में आएंगे। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा AA, और ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, AB AB, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तो अगर ये 2 अरेंजमेंट हो गया, तो हाउ मेनी आर GI, जियोमेट्रिकल आइसोमर और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एक एक को हम चेक करते हैं अभी कि इनका जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो यहाँ पे वो ट्रिक आपने नहीं लगाना है कि सेम लिगेंड जो है ये 2 पेयर है, ये भी सेम लिगेंड है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको वो ट्रिक नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पे ट्रिक जो है मैं आपको बताऊंगी, यहाँ भी वही है, सेम लिगेंड्स के पेयर 2 है, AB, तो ये भी नहीं हो सकता है। वो जो ट्रिक है वो मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए है। नाउ इन दिस केस let us make the structures AA, BB। अगर आप जो है इसमें इसको A मान लो और इसको B मान लो, तो दिस इज वन स्ट्रक्चर, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर। सो पहले हम BB जो कि ये Cl लगा लेते हैं, En एंड En अगर आप कर लो तो En का तो दोनों ही तरफ N है, तो N, दैट मीन्स AA हो गया, BB हो गया, दैट मीन्स वी हैव मेड नंबर 1 स्ट्रक्चर नंबर 1। और ये वाला भी है, तो जो है हम इस तरह से करते हैं, इसको यहाँ पे En कर दो, ये En और ये आपका En कर दो, और 2 Cl अगर यहाँ पे आपने कर दिया तो देखो ये N AA हो गया, NCl AB हो गया। सो ये आपका 2 स्ट्रक्चर है। अब ये वाला स्ट्रक्चर को अगर आप ले लो तो इसमें देखो बीच में से ये वाला प्लेन अगर इस तरह से आप इसको स्लाइस कर दो तो ऊपर में Cl और नीचे भी Cl, द मॉलिक्यूल विल बी स्लाइस्ड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। But then this one, if you make its mirror image, if you place it in front of the mirror, this will be the mirror image. See, these two are the non-superimposable mirror images of one another, and that is why we can say that this one will be optically active, and if this one is the D form, this will be the L form. So आपका GI 2 हो गए, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक आपका ऑप्टिकली एक्टिव निकला, जिसका 2 फॉर्म हो सकते हैं। तो GI हमने यहाँ पे लिख दिया, ऑप्टिकल आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर्स अगर हमने लिखना है तो स्टीरियो आइसोमर्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, stereoisomers will be one optically inactive, one
plus the active one will exist in two forms, that means 2, that means total number of stereoisomers will be 3. So this is how we have done this. Our next compound is MAAB3C. So possible arrangements पहले हम लिख लेते हैं. पॉसिबल अरेंजमेंट्स दो ही हो सकते हैं. ए के साथ ए लेकर के आप नहीं ले सकते हो, आपको ए के ऑपोजिट में बी या तो सी को लेना पड़ेगा. सो आप ले सकते हो ए बी, बी सी. ए 2 है, बी 3 है, सी 1 है. एक नंबर एलिमेंट ये हो गया. एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज ए बी, ए सी एंड बी बी. यही दो अरेंजमेंट हो सकते हैं. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 2. नाउ लेट्स चेक whether these two isomers, एक एक करके हम चेक करते हैं whether they are optically active or not. उसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं. आपका ए की साइड में आप रख लो. अब ए के ऑपोजिट आप बी रखो, ए के ऑपोजिट बी और बी के ऑपोजिट सी. The other one is ए पहले बना लो एक साइड में, ए के ऑपोजिट बी, ए के ऑपोजिट सी, बी के ऑपोजिट बी. यहां पे आपको इस तरह से देखना है, जब इस तरह से सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगैंड है, व्हेन सिमेट्रिकल didentate ligand is there, then आपको देखना है जैसे ये आपका above the plane और below the plane. above the plane ये B है, below the plane भी सेम है B. that means अगर आप इस तरह से इसको स्लाइस कर दोगे तो ये दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा. और इक्वल हिस्सा में अगर डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. एंड इफ इट इज हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो दिस वन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये स्लाइस वाला टेक्निक में जैसे आप बोल सकते हो, वैसे ही आप देख लो कि दो ऑपोजिट ग्रुप, जो दो ऑपोजिट ग्रुप है बी और बी, इफ दे आर सेम, टू ऑपोजिट groups are same, then POS is there, plane of symmetry is there. So this is another trick, and this is applicable when there is symmetrical didentate ligand. अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड एक है, ये जो ऊपर वाला है नीचे वाला जो ऑपोजिट ग्रुप्स है, एक तो B है और नीचे वाला जो है C है, ये दोनों डिफरेंट है. बट देन जो साइड लिगेंड्स है दे आर सेम, B और B. तो साइड लिगेंड्स अगर सेम हुआ तब भी क्या होगा, POS विल बी देयर, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर एंड इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो इसको काटने वाला मेथड से कैसे हम समझ सकते हैं? काटने वाला मेथड से हम इस तरह से समझ सकते हैं. सपोज अगर हमने इसको इस तरह से काट लिया, बीच में से ऐसे वाला कोई प्लेन से हमने काट दिया इसको, तो इन दैट केस आपका जो ऊपर वाला नीचे वाला निकल जाएगा. ऊपर वाला नीचे वाला निकल जाने से ये दो और ये दो ये पड़ा रहेगा, ये ऊपर में AB नीचे AB. दैट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड अगेन इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड सो इट इज हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो बोथ ऑफ देम दे आर
having plane of symmetry. So none of them is optically active, both are optically inactive. So no stereoisomer here, only geometrical isomers are two here.